Hello students, you are most welcome. Today we are starting chapter 1 in physics, na? Because before starting the online class, I want to clear the basic concept of the chapter, then we'll go through the online class on main topics, na? Because we will not base time on main topic, in general topics in the online class, okay? So here I want to tell you the basic concept related to the chapter 1. Chapter 1, the name of chapter 1 is electric charges. Okay, so electric charge, that means this chapter comes under electrostatics. So electrostatic, that means name itself saying electrostatic. So we want to clarify some basic terminology. So I took one electricity. Electricity, that means we are knowing about electricity, but exactly what's the meaning of electricity in the case of physics, है ना? फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीनिंग है वो हम ध्यान रखेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे. द एनर्जी ड्यू टू विच matter gets a property to attract the other things is known as electricity. Basically electricity is nothing else, it is a type of energy, है ना? It is a type of energy. So what we understood, that means it is an energy due to which matter gets a property to attract the other things is known as electricity. We are categorizing the electricity in two ways. First is static electricity and second is dynamic electricity. First static electricity and second is current electricity or dynamic electricity. So now we are going to describe basic funda of electrostatics. That we understood about electricity of two types, static electricity and dynamic electricity. So electrostatics, that means the branch of physics which deals with the charges at rest. Especially the word itself saying the meaning electrostatic. Static, that means रुका हुआ ना. The branch of physics which deals with the charges at rest and mutual interactions, है ना? It should be remembered, that means not only the static charge, and that mutual interaction will be there. Mutual interaction between the charges at rest is called electrostatics. Electrostatic, I hope you understood electrostatic. So after electrostatic we have to understand about the electrodynamics. Electrodynamics, that means the branch of physics which deals with the study of, which type of study of? Study of charges in motion is called electrodynamics. Okay, here what we'll understand, that means if the charge in the motion, then the electricity will be known as electrodynamics. Hope so understood. So now it's time to understand the electricity. What is the reason behind electricity? Why this energy is coming? Okay, so we have to understand next thing, charge. Electric charge is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise of electric force between various objects. That means I want to describe or I want to explain this thing. That means कि intrinsic property, that means जैसे कि किसी बॉडी का मास होता है, मास क्या होता है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती. दैट मीन्स इट इज नेचुरली, इट इज कमिंग नेचुरली. सो सेम वे चार्ज भी जो होता है, जैसे मास हमारा कौन से में, मैकेनिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. ये हर किसी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. अब वो होती है, वो अपना नेचर क्यों नहीं शो करती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. दैट मीन्स कि इन विच कंडीशन इट शोज इट्स नेचर. की वो भैया के हर किसी के अंदर चार्ज है तो वो दिखता क्यों नहीं है. तो उसका कंसेप्ट जो आता है वो डिपेंड करता है कि उसका चार्ज का कंडीशन, चार्ज शो करने की चार्ज की कंडीशंस क्या है ना. तो हमको ध्यान रखना है कि चार्ज जो है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को अफेक्ट करती है. दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स. जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण लग रहा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लग रहा होता है. अब बात आती है कि चार्ज, जैसे हम जानते हैं चार्ज दो टाइप के होते हैं. तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की हम बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज.
तो यहाँ पर बात आती है कि इनको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों कहा गया। तो इसकी बहुत बड़ी मतलब हिस्ट्री है, बहुत एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री है, तो इसको तो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई, इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलती है कि जब इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई और दो बॉडीज को हमने रब करके देखा और जब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी से टच किया तो एक कंडीशन ऐसी आई कि बॉडी पर चार्ज न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो ये मैथमेटिकल फिनोमेना जैसा था कि जब हम एक पॉजिटिव नंबर को सेम क्वांटिटी के नेगेटिव नंबर से जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन जैसा था, मैथमेटिकल फिनोमेना जैसा था कि दो एक पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको लिख के दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि 2 ये पॉजिटिव है और अगर मैं इसको -2 से जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो ये ऐसा ही कंडीशन मुझे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में मिला था। जब चार्ज बॉडी एक अनचार्ज दूसरी चार्ज बॉडी से को हमने एक कॉन्टेक्ट में लेकर आए तो एक कंडीशन ऐसी है कि वो एक न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल का कंसेप्ट था कि दैट चार्ज शुड बी 0। तो ये कंसेप्ट कब पॉसिबल था, एक मैथमेटिकल फिनोमेना के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस में। दैट इज वाई हम इनको प्लस और माइनस के नाम से जानने लगे। ये कंसेप्ट हमारे पास, अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को हम जानते हैं बहुत अच्छे से। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होता है। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि चार्ज वर नेम्ड। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि चार्ज का नेम जो नेमिंग की वो किसने की, चार्ज वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये चार्ज का नॉमेनक्लेचर है, मतलब नामकरण है। उन्होंने इसको और उनके पीछे मैंने जो कंसेप्ट बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीछे जो कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया वही कंसेप्ट था कि उन्होंने उसको किस कंसेप्ट में देखा, मैथमेटिकल फॉर्म में देखा, और मैथमेटिकल फॉर्म में एक नेगेटिव चीज दूसरी पॉजिटिव चीज को सेम क्वांटिटी को कैंसिल आउट कर देती है। अब बात आती है इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिफिकेशन कह सकते हैं चार्जिंग की। चार्ज बॉडी होती क्या है, और तो हम कह सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट पॉसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसेस है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक चार्ज को ले लिया है उसने, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज को शो कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। उसको हम तो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज बॉडी व्हेन इट हैज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इट इज सेड टू बी न्यूट्रल बॉडी, उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। अब बात आती है कि मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। तो देयर आर 2-3 मेथड्स। हम यहाँ पर 2-3 मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें से बाय रबिंग हम समझ चुके हैं। रबिंग क्या होती है, जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम सूखे बालों को कंघी से रब करते हैं और उस कंघी को हम नीचे जमीन पर ले जाते हैं तो वहां जो पेपर पे हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं, उनको वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा प्रोसेस जो होती है वो रबिंग से होती है, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रबिंग ना, रबिंग प्रोसेस। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन की प्रोसेस से भी चार्जिंग होती है, और चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट जैसे आप चार्ज मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं वो चार्जिंग बाय कांटेक्ट वाला कंसेप्ट है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडक्शन की प्रोसेस को समझना कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है। इंडक्शन का दैट मीन्स विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो चार्ज बॉडी कैसे चार्ज में आएगी, कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी। तो हमने इसके लिए ले लिया है। मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट तरीके से शो करके दिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ हैं जो बनते हैं और बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पर बनते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया ब्रिंग 2 मेटल स्पेस ए एंड बी। मैंने देखिए यहाँ डायग्राम में 2 मेटल स्पेस बनाए हैं ए एंड बी, और सपोर्ट कर रहे हैं वो ये दोनों जो सपोर्ट जिसको हमने इस रखा है वो स्टैंड जो है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है कि चार्ज को वो कंडक्ट नहीं करेगा, चार्ज को वो पास आउट नहीं करेगा। सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड इन कॉन्टैक्ट, ये दोनों चार्ज स्पेस जो है वो कॉन्टैक्ट में है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस लेकर आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों, आप पहले इसको देख लीजिए क्योंकि इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है। ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, जो ग्लास रॉड होगी हमारे पास, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज होगी, उसको हम क्या लेकर आएंगे, नियर टू 1 स्पेयर। हमने सपोज कर लिया कि उसको ए स्पेयर के पास में हम एक चार्ज रॉड को लेकर आएंगे। हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो चार्ज जो रॉड है वो इन स्पेयर्स को कॉन्टेक्ट ना करे, उनको टच ना करे। देखिए जैसे मैंने बताया था कि हम एक स्पेयर 2 स्पेयर्स ले रहे हैं, उनको हम ये देखो चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसको हम स्पेयर ए के पास में लेकर आए हैं और स्पेयर बी इसके कांटेक्ट में ऑलरेडी है।
अब यहाँ पर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये स्पेयर ए पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और स्पेयर बी पर पॉजिटिव चार्ज आपको होता नजर आ रहा है। इसका कंसेप्ट ये है कि जब हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को स्पेयर ए के पास लेकर आए होंगे, तो स्पेयर ए मतलब है हमारा मेटल स्पेयर है। मेटल स्पेयर मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसने फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है और इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया है। इससे इस पर हमको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। लेकिन ये प्रोसेस एक डेफिनेट टाइम तक ही चलती है, सैचुरेशन के टाइम तक चलती है, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में जब नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन को ही रिपेल करना शुरू कर देगा। तो बाकी बहुत ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ जमा हुआ है उतना ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम में। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम ये रॉड को ऐसी पोजीशन में रखेंगे, लेकिन इन स्पेयर्स को हम दूर दूर दैट मींस सेपरेट करेंगे। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, सेपरेट द स्पेयर्स बाय स्मॉल डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, वाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर द स्पेयर ए के पास में ही अभी ग्लास रॉड रहेगी, बट स्पेयर्स को हम आपस में दूर कर देंगे। ऐसा करने से हम देखेंगे चार्ज की जो क्वांटिटी है, चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम वे में अभी भी स्पेस ए और बी पर सेम पोजीशन में दिखता रहेगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं वो कंडीशन वही है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंडर दिस रॉड के अंडर इन्फ्लुएंस है। मतलब ये अभी भी इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है और इसके नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसका हम इस प्रोसेस देखते ही अब देखते हैं हमारी अगली प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इस चार्ज रॉड को हम सेपरेट कर देंगे। दैट मीन्स इसको रिमूव। हम इस प्रोसेस में देख पा रहे हैं कि दोनों चार्ज अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे और चार्ज का जो अमाउंट रहेगा वो इक्वल रहेगा ना। अब नाउ क्या करने वाले हैं हम, रिमूव द रॉड द चार्जेस स्पेयर रीअरेंज देमसेल्फ। मतलब चार्जेस पेयर हैं वो अपने चार्ज को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट होगा। नाउ सेपरेट द स्पेयर, सेपरेट्स को भी हम थोड़ा दूर कर देंगे एंड द चार्जेस ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्पेयर विल बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। देखिएगा आप यहाँ पर ये कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपको दोनों चार्ज स्पेयर्स दिख रहे होंगे, ये स्पेयर ए एंड स्पेयर बी। तो ये हमारी प्रोसेस होती है चार्ज बाय इंडक्शन। हम इंडक्शन से की प्रोसेस से चार्ज इस तरह से बॉडी को चार्ज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की कि ये दोनों स्पेयर्स हैं अमाउंट में इक्वल अमाउंट में चार्ज हुए हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ग्लास रॉड यूज की थी उसके चार्ज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उसके चार्ज में ना ही कोई कमी आएगी और ना ही कोई इंक्रीमेंट होगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि कॉन्टैक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन की प्रोसेस से जो होती है वो डिफरेंट प्रोसेस होती है एज कम्पेयर टू कंडक्शन। नाउ हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिएगा आप थोड़ा सा नोट्स को इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, थोड़ा सा कलर का यूज करेंगे क्योंकि आप क्वारंटीन में बैठे हैं तो कोई इतना ज्यादा टाइम का इश्यू नहीं, तो आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। तो आप लिखने की कोशिश करिए अच्छे से, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा बाद में। यहाँ पर मैंने बताया है बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस की। पॉइंट चार्ज कब होगा, जब जो भी चार्ज बॉडी है, इफ द साइजेस ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो चार्ज बॉडी है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू देयर साइजेस, तो हम ऐसे चार्जेस को कहेंगे पॉइंट चार्जेस। इसका ध्यान रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर को शो करते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी सिस्टम में चार्ज Q1 और Q2 हैं, तो अगर हम उस सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना चाहते हैं तो उस दोनों को हम एल्जेब्रिकली ऐड करके टोटल चार्ज पता कर सकते हैं। मतलब चार्ज अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, स्केलर प्रॉपर्टी शो करता है। चार्ज हमेशा स्केलरी एल्जेब्रिकली हम इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं। किसी भी बॉडी में या किसी भी सिस्टम में n चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज उस सिस्टम का क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। तो दिस इज द वे टू गेट द कंसेप्ट ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। चार्जेस का अपना एडिटिव नेचर होता है, मतलब वो एडिटिव नेचर शो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी सिस्टम में n चार्जेस हैं तो हम टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn। दिस इज द टोटल चार्ज।
चार्ज इज कंजर्व्ड, ये हम जानते हैं कि चार्ज जैसे मास हर किसी बॉडी का कंजर्व्ड होता है वैसे ही चार्ज कंजर्व्ड होता है, बिकॉज कि जैसे मैकेनिक्स में मास रिएक्ट करता है, मास अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि विद इन एन आइसोलेटेड, देखिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में यूज कर रहा हूं बिकॉज एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के कंसेप्ट मैंने यूज किए हैं, और सेकंड थिंग हम 12th क्लास में हैं तो हम एकदम लो लेवल का लैंग्वेज यूज ना करें। विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज बॉडीज, अगर बहुत सारी बॉडीज हमारे पास हैं और किसी आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो ड्यू टू इंटरेक्शंस अमंग द बॉडीज, उनकी बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उससे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट हमको याद रखना है कि उस पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होगा। दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर बॉडी अपने चार्ज में कमी और बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज अपना की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म of an integral multiple of electronic charge and never its fraction, इसकी फ्रैक्शन में वो नहीं मिलता, हमेशा वो इंटीग्रल फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक कंसेप्ट और भी बताना चाहूंगा जो कि हम छोटी क्लास में पढ़ा है, वो हमारे लिए आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग Q जो है, Q हम चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस एन ई, एन यहाँ पर इंटीजर है और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि एक तरह से बूस्टिंग होगा क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो अब यहाँ पर मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट ले लिया है, Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज Q इज इक्वल टू कितना दिया हमको 1 कूलम, सो आई विल कीप द वैल्यू ऑफ चार्ज कूलम 1 कूलम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी वांट टू नो, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 होती है। आप क्या करेंगे, इस 1 के नीचे इस क्वांटिटी को लेकर आएंगे तो 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। सो हम इसको क्या करेंगे 1/1.6 एंड इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे 10⁻⁻19 तो प्लस 19 हो जाएगा ये, है ना। अब आप देखेंगे इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये इस डेसिमल का हटाने पर यहाँ 0 लग जाएगा तो 10/16 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू n। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस 19 में से एक 10 निकालीजिए तो ये हो जाएगा 10, एक और 10 आपने निकाला तो यहाँ पर 10⁻18 बचेगा और ये 16 इक्वल टू n। 4 4 16 एंड 2 5 एंड 2 5 ना, 4 मैंने कैंसिल का समझ गया होगी कि इसको मैंने डायरेक्टली 4 से कैंसिल करिए, इसको 2 से, तो ये मिलेगा आपको 25/4 इंटू 10⁻18 इक्वल्स टू n। आई वॉन्ट टू राइट हियर ओनली बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टर्न द पेज। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर इस 4 से डिवाइड करेंगे 25 को तो आपको मिलेगा n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप समझ गए होंगे।